जनवरी को चलेगा भोपाल। आहा ए ओ क्लाइमेट वॉक करेगा भोपाल। जाने माने आएंगे कलाकार हो, जाने माने आएंगे कलाकार। आर्ट एंड कल्चर का होगा ये त्योहार। बीफा 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 भोपाल में बीफा 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 भोपाल में बीफा है। सारा मचट from South Africa, Alicia Coral from Spain, मारिया पले मैक्सिको से, नॉर्वे से आएंगे हार्वर्ड रैम। थाईलैंड जापान कोरिया सहित दुनिया भर से आएंगे कलाकार हो, दुनिया भर से आएंगे कलाकार। आर्ट एंड कल्चर का होगा ये त्योहार। बीफा 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 भोपाल में बीफा 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 भोपाल में बीफा है। 29th December 2016 to 8 January 2017 Vihan International Festival of Arts VIFA in Bhopal, Madhya Pradesh, India. भोपाल में बीफा है, भोपाल में बीफा है, भोपाल में बीफा है, भोपाल में बीफा है। Improvising tomorrow night. But once again, very, very big thank you to Vihan, to Sudeep and Swarab for inviting me here. Thank you. युवाओं पे फोकस रखते हुए भी विहान परंपराओं को निगेट नहीं करता। वो अपनी परंपरा में, चाहे वो लोक परंपरा हो या हमारी कलाओं की सतत परंपरा हो, उसका उतना ही सम्मान करते हैं और उसको उससे भी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ये जो आर्ट फेस्टिवल है, इसमें हमने एक थीम, बहुत महत्वपूर्ण थीम रखी है, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण चिंता, पर्यावरण परिस्थितियाँ बदल रही हैं। दुनिया भर से आएंगे कलाकार हो, दुनिया भर से आएंगे कलाकार। आर्ट एंड कल्चर का होगा ये त्योहार। बीफा 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 भोपाल में बीफा है। तो एक कलाओं का समागम आप यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे साथ आने वाले 10 दिनों में, जहाँ शुरुआत आज हो चुकी है। और अब जानेंगे हेमंत जी से हमारी आखिरी बात। और पहले दिन ही शाम को हास्य जोड़ामणि का शो होगा, जो कि भोपाल का और देश भर का जाना माना कॉमेडी शो है। और उसी तरह आप देखेंगे कि बंगाल का लोक संगीत और बंगाल का सुप्रसिद्ध बाउल संगीत यहाँ पर आया है। तो उसके जो जाने माने कलाकार आ चुके हैं, इसी और आर्टिस्ट हमारे बीच आने वाले शुभब्रत से
Thank you. Very briefly, thank you very much, VIFA, to invite me to perform here. This is a dream come true because India is a very special country for me, and all this research is about India. I know I had some. I really enjoy Alicia performance. That was it really touched my heart. And tell something about Vifa. Yeah, I'm really enjoying. I'm happy to discover that for the next few days, I'm gonna be able to come and see different artists, different type of art. I really like art. Hi, I'm Maria Palais. I'm a journalist, an editor, a translator, a teacher, and sometimes a poet. But today, I had the most wonderful time listening to everybody. I even thought that I could understand Sanskrit. This lady, Alicia, was absolutely wonderful. She has India in her soul. It is so beautiful. I was like really impressed. I knew this would happen. Now I want tomorrow to talk about climate change because that is my one big obsession. So I'm sure that we'll do something. And it is so important for all the artists to get together and become, like one of the poets here said, social activists. Hello, my name is Maria Palais. I come to Bhopal all the way from Latin America, specifically from Mexico. I live in Mexico City. I studied in New York. I work in Washington, D.C. And I'm very interested in promoting the idea that climate change is the one single most important issue for us to tackle. Here in Bhopal, with the VIFA team, we are trying to promote an initiative of Shivaraj Sir around the Narmada River. The river is the one that flows around the empty state, and it is the one that we are unfortunately polluting. So the idea of this campaign is to stop the pollution of this wonderful river that gives us so much beauty and life. So we, along with Shivaraj Sir, would like for you to become aware that our river is a source of life and a source of beauty. Please help us take care of it. Please help us fight climate change and keep our rivers and our waters clean. Thank you. Hello, I'm Alicia from Spain. I'm here in Bhopal in VIFA festival with Vihan team, performing in the festival. I was performing in Rabindra Bhavan. And we are here to work with our art to create a consciousness about the climate change, so important in our times. It's very important in India, but it's very important in all the world. So I know here in India, in MP state, there is this Sir, Shivaraj Sir, that is making this cleansing of the
Narmada River, that I think it's very important that we all people join this campaign to clean this river, because this river gives life to this state. So it's very, very important. All the factories, all the business that are polluting this river, please stop in doing that, because you will kill your land. So it's very important to join this Shivaraj Sir campaign to clean this holy river that you've got. Thank you very much. I will join this campaign also. फिर चालू हो गया तुम लोगों का देवी महत्व भजन। अरे मैं कितनी बार बोलूं? सुधी जनो, अब तो देखा मैं थोड़ा सा बाहर गई कि नहीं कि लोग चालू कर दिया देवी महत्व भजन। अरे भाई, मैं कितने बार बोलूंगी? मैं कोई देवी वेवी नहीं हूँ। मैं एक आम औरत, आपकी तरह। मैं मनोजा। अरे छोड़िए, मैं सुनाऊंगी अपनी कहानी। क्या बोलूं आपको? हमारा मुख्य कलाकार creates and shares it with another man. This is the relationship. Because you may bring in your poetry or painting or whatever, or theatre, many things of the universe. But ultimately you are addressing him. Which I would like to share with you is this, not my thinking, but one of our foremost, who is now no more, theatre director from Bengal. His name was Sambhu Mitra. And he has written many things on theatre. What his experiences, about his ideas, about his thoughts. And in one of his essays he says that the actor knows in his or her mind or heart that whatever I am doing at this moment is going to last. But in that moment he craves for an immortality. What? Immortality. He craves for that. That whatever I am doing is immortal. I'm not going to lose it. Or whosoever are present here. Shanti, Shanti, Shanti. Happy New Year! नाटक सिनेमा संगीत होगा, हर कला का
भोपाल में बीफा 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 भोपाल में बीफा है। जनवरी को चलेगा भोपाल जाने माने आएंगे कलाकार हो जाने माने आएंगे कलाकार मारिया पहले मैक्सिको से नॉर्वे से आएंगे हार्वर्ड दुनिया भर से आएंगे कलाकार हो दुनिया भर से आएंगे कलाकार बीफा 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 भोपाल में बीफा 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 भोपाल में बीफा है। 29th December 2016 to 8 January 2017, Vihan International Festival of Arts, FIFA, in Bhopal, Madhya Pradesh, India. International Festival of Arts for Climate Change. It will be another 10 days of festival, very interesting festival, so please come, enjoy it, and support climate change. 1, 2, 3, go! Thank you and Happy New Year!
I'm Bank from Thailand too. And saw the show in the last night from Bihan. This show is very nice. I think the show has is funny and comedy. I don't know. I don't know in Hindi language, but I can find because It's the body language. yeah, it's very expression and I like it because comedy and some joke is Yes, something international. yeah. I guess we have lunch on that time. Yeah. And if production is so good, Yeah. it's lighting or music. And in this show I like one scene have Running. Oh, Sure. we can Sure. try. Sure. Yeah, I really like it. I like it so much. Yes. I and I like in scene in slow motion. Yes. Yeah, slow motion too. It's very funny. Yes, I will do it in my country. उसके
बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से शुरू करता हूँ और एक करता हूँ, फिर एक अंतर है। एक होती मारिया, एक होती मारिया, तिच्या हार्ट मध्ये रे तिचं समुद्राचं फिश, तिची फिगर लाई स्ट्रेट पण कप मध्ये राज्याला स्टार बोर्ड वाईन पिऊन पडले दोन एनिमी सोडले केस तिचे काले बाल्स किती काले केस तिचे काले फिगर तिचे केस तिचे काले डोळे तिचे निळे केस तिचे काले नीले तिचे डोले राज्याला स्टार बोर्ड वाईन पिऊन पडले राज्याला स्टार बोर्ड वाईन पिऊन पडले ग्रेग मार्क पीटर टॉम ग्रेग मार्क पीटर टॉम सगळे मेले कारण why because तिची फिगर लाई स्ट्रेट ये दिखा उनके काम के सामने आप बैठ जाओ, हो सकता है कि ऐसे लोग होंगे। मैंने बहुत तो नहीं किया, पर किया 10 घंटा पर 15-20 मिनट देखा किसी। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ कुछ इकट्ठा किया गया, कुछ एकत्र हुआ, कोई एनर्जी, कोई ऐसी चीज़ जो खत्म नहीं हुई, आप उससे निकालते जा सकते। जैसे मैं ये सच्चाई आप सब युवा लोगों से तो कहना चाहता हूँ, कभी किसी काम को खराब मत कीजिए, खराब वो होता भी नहीं। मैं अगर रज़ा की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ ऑटो के पीछे बने हुए फूल की भी बात भी करता हूँ, तो खराब कहाँ से? फर्क केवल इतना है कि उसको मैं या कोई भी 2 घंटे नहीं देते। किसी ने बनाया, कोई बैनर है, कोई पताका है, तो टेस्ट एक ही है कि किसी चीज़ में आपने कविता हो, चित्रकला हो, संगीत हो, नाटक हो, फिल्म हो, आपने इकट्ठा क्या किया। और अगर इकट्ठा किया है तो जाहिर है इसमें से लोग निकालेंगे, निकलता रहेगा। अब एक बात की और इशारा करना चाहता हूँ दोनों के बहाने से, कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जैसे लोग 50-60 साल तो हो गए कलाओं की दुनिया में रहते हुए, कि क्यों लगता है कि यही जीवन है, इसमें रहो, इसके लिए आसपास रहो तो कुछ मिलेगा, और उससे दूर जाने लगते हैं तो बहुत तकलीफ सी होती है, कुछ छूट रहा है। तो उसका कारण धीरे धीरे सोचने में मेरे ये आया कि जैसे मान लीजिए यहाँ धूप छाँव, पत्ते झड़ रहे हैं, नेचर है, चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है, बहुत सुंदर लगता है। पर ये एक बार बार प्रकट होने वाली चीज़, और इसको भी सच पूछे तो मैं तब जानता हूँ जब वो बात कहीं एकाग्र कर दी जाती थी। मानगांव के सूर्यमुखी को मैं क्यों देखता हूँ, सारी दुनिया क्यों देखती है? सूर्यमुखी का वैसे भी देख सकते हैं। इसका मतलब इसमें कुछ इकट्ठा किया, कुछ ऐसा इकट्ठा किया गया जो खत्म नहीं हुआ। और जैसे मैंने अपने भोपाल वाले घर में भी एक छोटा सा घर बनाया है, वहाँ जीने पर सीढ़ियों पर 2 प्रिंट लगा रखे हैं सूर्यमुखी के। तो वो मैंने क्यों लगा रखे हैं?
कि न सही मुझे ओरिजिनल देखने को मिले, मुझे ये देखने को मिलता रहे। ये तो एक उदाहरण है, क्योंकि वही स्वामीनाथन को देखे चिड़िया तो मिट्टी देखती है, इसके अर्थ भी बहुत सारे हो सकते हैं, आशय बहुत सारे हो सकते हैं, पर चिड़िया होने का एक अलग अर्थ मेरे लिए प्रकट होता है। दूसरा और बड़ी चीज़ है वो अमूर्तन। अगर आपके काम में अमूर्तन नहीं है, भले उसमें आकृति भी हो, पर एक तरह का अमूर्तन जरूरी है, क्योंकि वही उसकी चौहद्दी के पार आपको ले जाता है। नहीं तो आप जो कहते हो किसी को चीज़ को बना दें तो किसी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। इसीलिए जब मान लीजिए कोई जैसे फिगरेटिव आर्टिस्ट है, जब हम नाटक ही देखते हैं, पर्रिकर जी का ही नाटक देखते हैं, फिगर है, आकृतियाँ ही हैं, तो होंगी, मतलब एक्टर है तो मनुष्य है, तो वही स्टेज पर है। दूसरी तरह के नाटक भी हो सकते हैं, इसमें उसका कोई मनुष्य न हो, उसकी बात नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं तो मनुष्य होगा उसके पीछे, जो सोचेगा, विचारेगा, उसकी परिकल्पना करेगा। तो अब आप देखें तो वो आकृतियों को लेकर वो क्या करते रहे हैं कि हम लोगों ने, जिन्होंने इनका मध्यम व्यायोग और भंगम देखा, पूरा तो याद नहीं रहता। नाटक के साथ ये है, उसको मान लेना चाहिए, और वो बहुत बड़ी चीज़ है नाटक के साथ कि वो उसी रूप में दोबारा नहीं रहता, वो समाप्त हो जाता है, फिर उसको आप रचते हैं। और हमारे शंभू मित्र जी ने इतनी सुंदर बात कही इसको लेकर के, उन्होंने लिखा है कि ये जिस क्षण एक अच्छा अभिनेता मंच पर होता है, इस क्षण ये वो जानते हुए कि जो भी वो कर रहा है मिट जाने वाला है, वो एक अमरता की कामना करता है। और अगर वो अमरता की कामना नहीं करता तो वो अच्छा नहीं करता, वो ऐसा नहीं कर पाएगा कि मुझसे भी कम्युनिकेट हो, तो फिर तो मान लेगा अरे मिट जाने वाला है, निपटा दे इसको, यही तो होगा ना फिर। तो इन लोगों ने क्या सिखाया, जिसकी बात इतनी अच्छी तरह कर चुके हैं, उसको मैं दोहराऊँ। पर्रिकर साहब बताएं, पर्रिकर जी ने यही तो किया, मतलब परंपरा से। यहाँ संगीता बैठी हुई है, उनकी किताब से मेरे पास है, जिन्होंने भास्कर अग्नि शीर्षक से लिखी है, और बड़ा सुंदर इंटरव्यू पर्रिकर जी का उसमें है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग आसानी से मिल जाएगी, अब तो वहीं से मिल जाएगी, फोटोकॉपी करा लीजिएगा, लेकिन पढ़ने लायक। उसमें एक प्रसंग आता है जो बड़ा मुझे मार्मिक लगता है, उसको हम लोग जब भी मिलते याद करते हैं। तो पर्रिकर जी किसी प्रश्न के उत्तर में संगीता के कहते हैं, एक कुडियाट्टम के नर्तक का उदाहरण देते हैं कि कैसे एक बार एक अंग्रेज तो बड़ा नाराज़ हो गया था उस नर्तक पर, तो उसने क्या किया, उस नर्तक ने अभिनय कर पत्थर फेंकने का अभिनय किया उसके कुत्ते पर, और वो ऐसा लगा जैसे सच में पत्थर फेंका, तो बहुत नाराज़ हो गया। तो इस नर्तक ने कहा कि मैं तो पहाड़ भी गिरा सकता हूँ, ये तो अभिनय मैंने किया था, आप क्यों नाराज़ हैं? और वो सचमुच उसने पहाड़ गिरने का एक ऐसा अभिनय किया कि अंग्रेज भाग खड़ा हुआ, उसको लगा पहाड़ बिल्कुल गिर पड़ा। ऐसे लोग थे। तो आप सोचो कि जब ऐसे लोग थे और ये चीज़ें उनको कहाँ से मिली, तो अभी जनते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ही हो गए समाज में, जो एक व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों की बात जो ये कह देते हैं कि इसमें क्या है, ये तो रेलिवेंट नहीं रहा। तो रेलिवेंट आप किसको मानते हो? रेलिवेंट आप तो वो होता है जिसको कोई एक बड़ा कार रेलिवेंट बना देता है। आज विभूति बाबू को बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने बजट पांचाली देखी है, वो सब नहीं, उन्होंने उपन्यास भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे और भी कई उपन्यास बहुत बड़े लिखते हैं। तो आप ये देखो कि इनकी तैयारी क्या है, मैं तो उससे सफी करता हूँ। और आपको सच बताऊँ, इसमें आप ये मत सोचिए निर्मलतावश कह रहा हूँ, इससे मैं आज तो बड़ा पीड़ित भी रहता हूँ, सचमुच दुख मेरा भी। संगीता ही प्रसंग में मुझसे कह रही थी, अरे आप उनके बारे में नहीं जानते। मैंने कहा संसार में इतनी चीज़ें जानने को, तो मैं आपको सच बताऊँ, रोज़ मैं ये भाव लेकर सोता हूँ कि मुझे कितना काम होता है, कितना कुछ पढ़ने को है, कितना कुछ देखने को है, कितना कुछ जानने को है,
और ये हमारा भाग्य भी तो है कि ये लोग हमको मिले और हमने इनको देखा और जाना, ये हमारा भाग्य है। नहीं हो सकता। तो दिन ने कहा कि ये प्रॉब्लम जानते थे, इसलिए मुझसे अधिक जानते थे। मेरी उनसे 4-5 बार की भेंट है, लेकिन हर भेंट में मुझे जो देकर गए वो मैं जानता हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने सचमुच कुछ ऐसा किया है, सोचा है, विचारा है, और 3 चीज़ों को लेकर फिर वापस आता हूँ कि स्मृति को लेकर, परंपरा को लेकर और अपने समय को लेकर, और वो क्या करना चाहता है, क्या ढूंढ रहा है इसको लेकर, तो आप बैठे नहीं आते तो बहुत कुछ दे जाता है। ऐसे ही आपको कुछ दे जाते हैं कि आप इसको आप कहते हो प्रेजेंस क्या होता है। इन लोगों के प्रेजेंस क्या है कि आप कुछ प्रेजेंस नहीं होता है। देखिए मेरा तो जन्म कोलकाता में हुआ, वहीं में बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई भी वहीं शुरू की। तो मेरे पिता की दुकान की किताबों की, तो वो सत्यजित राय हमारी दुकान से किताबें खरीदते थे। मेरी उम्र उसकी 10-11 साल की। तो वो एक बहुत लंबे आदमी को गुजरते हुए मैं देखता, तो फिर वो रह जाती है कि मेरे व्यक्ति के लिए ऐसा था। पर वो रोमांच में अभी भी नहीं कर सकती। उस व्यक्ति में कुछ था जो अब तक पहुँचता था। वो जो पहुँचता है अब तक, वो क्या होता है उसको कहो तो आप उसकी साधना कह लो, उसका चिंतन कह लो, उसका सोचना विचारना कह लो। और जितने लोग ऐसे मिलते हैं हम लोगों को हमारे भाग्य से, उन सबके बारे में मुझे यही लगता है। समुद्र जी का मैंने अभी नाम लिया। समुद्र जी के साथ में 67-66 में जब आए थे नाटक लेके दिल्ली में, मैं 26 साल का था। 5-7 दिन उनके साथ रहा। इस पर समय मुझे बांग्ला आते हुए मुझे लगा दिया गया था। दिनमान की ओर थी, हमारे संपादक अजीत थे, उनको लगा कि बांग्ला आते हो कुछ साथ रहो, फिर कुछ देखो नाटक और कुछ लिखो। उनके साथ भी रहते हुए तो बात कर रहे हैं तो नहीं बात कर रहे हैं तो वो कुछ पहुँच रहा है, तो वाइब्रेशंस होते हैं। इसलिए उदयन में जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग आजकल भुलाए रखते हैं। स्पेक्टिकल रखने से वो भी इनको करना है, मिलना है, जुलना है, समारोह करने हैं, देखना है एक दूसरे को। और चिंतन बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी का पढ़ना मतलब खाली साक्षर वाले अर्थ में पढ़ना नहीं। जितने नाम आते हैं राजा साहब हों, आपने उन्होंने पढ़कर तैयारी देखी, फिर नोट हो जाता। राजा साहब आप जानते हो कि एक डायरी रखते थे, हिंदी कविता के प्रेमी थे, तो जो भी उनको अच्छा लगता है उसको नोट कर। तो चिट्ठियाँ उन्होंने लिखी, कुछ खन्ना को लिखी हुई चिट्ठियाँ तो छप गई अंग्रेजी में। उन चिट्ठियों को आप देखो, जो उनके मित्रों से हम तक पहुँचा। क्योंकि मैं रजा को इतना नहीं जानता मैं जितना रामकुमार जी को जानता, ये जानता रहा हूँ और आज भी जानता हूँ। तो उनसे सुनते थे उनके किस्से, व्यक्ति रूप के भी एक किस्से की याद कर लेता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। ये रामकुमार जी पब्लिकली सुना चुके। तो जब ये दोनों पेरिस में रहते थे साथ, आसपास कमरों में एक अपार्टमेंट में, तो रजा का काम दिखने लगा, रामकुमार जी का काम दिखता नहीं था। रजा को ये बात मालूम थी। तो रजा के यहाँ एक दिन एक उनके कलेक्टर आने वाले, उनका काम खराब था। हर वेले तांगा यार दिया, मैं ता बैठी काग उडारा, आप वंझा के मैं कासद बेजाओ, मेरा ठीक हाल बीमारा।
दा मैं ता में विछड़ी जिमें विछड़िया कूंज कतारा लंगिया पब्बा पार उमरां लंगिया पब्बा पार उमरां लंगिया पब्बा पार उमरां लंगिया पब्बा पार हाले ना है वे हाले ना है वे हाले ना बस वे काले उमरां लंगिया पब्बा पार उमरां लंगिया पब्बा पार परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो तेरी आदत वतना बल्लोड़ा गुलाम फरीदा मैं ता दो सख सड़सा गुलाम फरीदा मैं ता दो सख सड़सा कमली करके छोड़ दितोई कमली करके छोड़ दितोई ओ कमली करके कमली करके छोड़ दितोई छोड़ दितोई छोड़ दितोई कमली करके छोड़ दितोई छोड़ दितोई छोड़ दितोई ओ कमली करके छोड़ दितोई ते बैठी रख गलियां दे रोला गुलाम फरीदा मैं ता दो सख सड़सा गुलाम फरीदा मैं ता दो सख सड़सा जे नमक माही वल्लो मोड़ा हो दे रंग काले सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले हाले ना है वे हाले ना है वे हाले ना बस वे काले उमरां लंगिया पब्बा पार उमरां लंगिया पब्बा पार
कण वंगानी मेरिया जिधरू वे मैं लंगानी मेरिया क्षण 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 कण वंगा ए बंगाशला टूट ना जावण ए बंगाशला टूट ना जावण रोज दुआएं मंगानी मेरिया रोज दुआएं मंगानी मेरिया क्षण 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 कण वंगानी मेरिया जिधरू भी मैं लंगानी मेरिया क्षण 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 कण वंगा हाने ना है वे हाने ना है वे हाने ना बस वे काले उमरा लंगियां पब्बा पार उमरा लंगियां पब्बा पार क्षण 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 कण वंगानी मेरिया जिधरू भी मैं लंगानी मेरिया उमरा लंगियां क्षण 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 कण वंगा क्षण 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 कण वंगा क्षण 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 कण वंगा थैंक यू सो मच। देखिए खुशी तो बेहद हो रही है दिल से, क्योंकि काफ़ी समय से देख रहा था विहान को। सुदीप जो है आपका एक अहम जो सदस्य है, उसका लीडर है, वो हमारा एक स्टूडेंट रह चुका है, तो उनसे तो एक रिश्ता था ही, एक दोस्ती थी। जब उन्होंने यहाँ बुलाया पिछली बार ग्रुप से मिलने के लिए, तो सबसे मिलकर बड़ी खुशी, एक जेन्युइन फीलिंग जो आती है कि यहाँ एक रियल एनर्जी है। और ये लोग जो हैं वो अपनी ओरिजिनलिटी के कन्विक्शन को पकड़ के अपने हकीकत के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी रियलिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं और उसको एक अच्छा क्रिएटिव कल्चरल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे फोरम्स की बेहद ज़रूरत है, खास करके हिंदुस्तान को, कि अलग अलग विचार साथ में आए, बहस हो, जहाँ अलग अलग तरीके के आइडियाज़ पेश किए जाए, अलग कल्चरल फॉर्म्स में पेश किए जाए। और उसके लिए अगर तुम देखो तो विफा जो है वो बहुत ही एक अहम कदम है। और ये इस साल जिस अंदाज से तुम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। और ये सब कुछ देख तो के मुझे तो एक गर्व महसूस होता है कि भैया मैं भी विफा में शामिल था 2017 में। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भैया हमारे भी सेशन थे इसके अंदर, और विफा ने हमको एक मौका दिया, बुलाकर एक प्लेटफॉर्म दिया, ऑडियंस दी, ओके, जो आके सुने, और बड़ी इंटरेस्टेड ऑडियंस थी उसके। तो ये सारा कुछ देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चल गई रंगून हो, सैया चल गई रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मेरे टपुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मेरे टपुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल
great initiative by Vihan and it's a composite arts festival जहाँ पे काफ़ी सारे कलाकार आ रहे हैं from different areas, in fact even international. So it's a great initiative. It's very well organized by all these enthusiastic youngsters, and I wish Vihan all the best for future such endeavors. In Bhopal, Madhya Pradesh, India.